ناظرین آداب، خاص بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ جی آئی او پر دہشت گردی کے الزام کا معاملہ، بامبے ہائی کورٹ نے مرکز و ریاستی حکومت اور پولیس سے کیا جواب طلب۔ ممبئی کے نور محمد کی خودکشی کی کوشش، اسپتال میں زیر علاج آئی ایس سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے نور محمد۔ ملک کا مسلمان آئی ایس کے خلاف چند شیطانی طاقتیں ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا بیان۔ آئی ایس کے خلاف مالیگاؤں میں بیداری مہم، نوجوانوں کو آئی ایس کے جھانسے میں نہ آنے کا مشورہ۔ مدھیہ پردیش میں فرقہ وارانہ واقعات میں اضافہ، رکن پارلیمان منور سلیم نے کی صدر جمہوریہ سے ملاقات۔ تو یہ تھی سرخیاں، اور اب خاص بات تفصیل سے۔ جماعت اسلامی ہند کی شاخ گرلز اسلامک آرگنائزیشن پر دہشت گردی کے الزام سے متعلق سرکولر کو لے کر بامبے ہائی کورٹ نے ریاستی اور مرکزی حکومت، آئی بی اور ممبئی پولیس کو ملا کر جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے 3 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے جی آئی او کو بدنام کرنے پر 10 کروڑ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ واضح ہے کہ 30 مارچ 2013 کو ممبئی پولیس کے ذریعے ایک انٹرنل سرکولر جاری ہوا تھا، جس میں جی آئی او پر قرآن و حدیث کے ذریعے لڑکیوں میں دہشت گردی کی تعلیم دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اس کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اکتوبر 2013 میں بامبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ 2013 میں گرل اسلامک آرگنائزیشن پہ الزام لگا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ذریعے مسلم لڑکیوں میں دہشت کی تعلیم پھیلانے کے در پر ہیں اور اس کی کوشش میں ہیں۔ یوسف منچلا صاحب جو ہے، ان کی قیادت میں جماعت اسلامی نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، ایک عزیزاز داخل کی تھی بامبے ہائی کورٹ میں۔ اس کے بارے میں بامبے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے حکومت مہاراشٹر، حکومت ہند سے اور آئی بی سے۔ اس تعلق سے ہم بات کرتے ہیں بہت ہی معروف وکیل قانون داں یوسف منچلا صاحب سے، جو اس معاملے کی پیروی کر رہے ہیں۔ سر، ایک بات یہ بتائیے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے ابھی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے، کس بنیاد پہ کہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 30 مارچ 2013 کو سامنا، مراٹھی پیپر سامنا میں ایک نیوز شائع کی گئی کہ اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس سرکولیٹڈ بائی دی سی آئی ڈی برانچ آف ممبئی پولیس دیٹ یہ لوگ اسلامی تعلیم کے دینے کے نام پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں مسلم خواتین کے بیچ میں۔ تو اس کے بارے میں جب کچھ ریپریزنٹیشنز کیے گئے کمشنر آف پولیس کو اور وہاں پر یہ بات سامنے آ گئی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک رپورٹ آئی تھی وہ کانفیڈینشیل تھی، لیکن کس طرح سے پبلک ڈومین میں آئے گی اس کی ہم جانچ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو تحقیق کی تو اس تحقیق کے بارے میں ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو ہم کو انفارمیشن ملی تھی، انٹیلیجنس انپٹ تھی، اس میں کوئی قسم کا وجود نہیں تھا اور یہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی مہاراشٹر میں نہیں ہوئی ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ لیکیج کیسے ہوئی، یہ جو انفارمیشن آپ کو ملی اس کی لیکیج کس طرح سے ہوئی اور یہ کس طرح سے آپ کا کانفیڈینشیل رپورٹ پبلک ڈومین میں آ گیا، تو اس کے بارے میں جانچ کی جائے۔ تو جانچ کے لیے کافی انہوں ایشورنس دیے گئے، ہم کو یہ کہا گیا، تسلی دی گئی کہ ہم لوگ جانچ کریں گے اور جو بھی کوئی اس میں قصوروار پائیں گے اس کو سزا دلائیں گے۔ لیکن اپریل اور مارچ اور اپریل میں یہ باتیں چلی، جہاں تک کہ جماعت اسلامی ہند کے جو لیڈرز ہیں ان لوگوں کو یہ بھی تسلی دلائی گئی، تو انہوں نے اس کا انتظار کیا کہ جانچ ہوگی، اس کا کوئی نتیجہ آئے گا۔ جب جانچ
कि कोई नतीजे नहीं आ रहे थे, तो जुलाई में उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजी और लीगल नोटिस भेज के कहा कि भाई जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या हो रहा है, हमें इत्तला दी जाए। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफेमेशन। लोग हमसे कतराते हैं और इसलिए उसको तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप हमको ये बताइए, तो जमात को बताइए। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इसलिए फिर यहाँ पर एक रिट पिटिशन दर्ज की गई है, 2013 में ही दर्ज की गई, जिसकी इट केम अप फॉर एडमिशन ओनली डे बिफोर यस्टरडे। एंड वहाँ पर जब निकली तो जज साहबान ने इस बात को तस्लीम की कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और उन्होंने जवाब तलब किया है फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, फ्रॉम IB एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शुक्रिया से बात करने के लिए। यूसुफ मुचला साहब जो कि GIO का केस लड़ रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, इनका कहना है कि हुकूमत पुलिस ने इस बात को माना है कि GIO जो है वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है। इसके बावजूद जो है वो डिफामेशन का केस इन्होंने दाखिल किया है और 10 करोड़ रुपए के हाथ जाने का दावा किया है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। गुज़श्ता साल दिसंबर में मुंबई के मलाड मालवनी इलाके से IS से ताल्लुक रखने के मामले में गायब हुए 4 नौजवानों में से वापस लाए गए नौजवान नूर मोहम्मद ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। गुज़श्ता साल दिसंबर में मुंबई ATS ने पूना से नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद नूर मोहम्मद को ATS ने रिहा तो कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि ATS की जानिब से मुसलसल पूछताछ की वजह से जहनी तनाव के शिकार नूर मोहम्मद ने चूहे मारने की दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। नूर मोहम्मद गुज़श्ता 10 दिनों से मुंबई के KEM अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। IS के नाम पर मुसलमान नौजवानों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन मुंबई में एक अनोखा केस सामने आया है। मालूनी से गिरफ्तार होने वाले 4 मुस्लिम नौजवानों में से एक नूर मोहम्मद ने, जिस पर यह इल्ज़ाम आयद हुआ था कि वो ISI के शिकंजे का शिकार हो चुका है, ISI से प्रभावित है, उसने जो है जहर खा के खुदकुशी की कोशिश करने की कोशिश की। फिलहाल जो है नूर जो है वो मुंबई के KEM हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और माना जा रहा है कि 10 दिन पहले जो है वो महाराष्ट्र ATS और मुंबई पुलिस की मुसलसल इंट्रोगेशन हरासमेंट की वजह से नूर मोहम्मद ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हम आपको बता दें कि ATS ने जो है वो नूर मोहम्मद को पूना से डिटेन किया था और उसके घर वालों के हवाले किया था। इस दौरान ATS ने काफ़ी पूछताछ की और इसके पूरे के पूरे इंट्रोगेशन से हरासमेंट का शिकार होने वाला नूर मोहम्मद जो है वो चूहे की दवा खा के खुदकुशी करने की कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर की टीम ने इसे भले ही बचाने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ATS पे लगता है कि क्या वाकई ATS मुस्लिम नौजवानों को हरास करने का सिलसिला रोकेगी या नहीं। कैमरामैन संतोष दिसे के साथ मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क और रियासत में नौजवानों के दाइश से ताल्लुक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मालेगांव शहर पुलिस ने इन्हीं हालात को देखते हुए शहर के ATT हाई स्कूल में दाइश के खिलाफ बेदारी मुहिम के ताल्लुक से एक जलसा मुनक्किद किया था, जिसमें शहर के उलमाए कराम और पुलिस अफसरान ने नौजवानों की रहनुमाई की और इन्हें IS के झांसे में न आने का मशवरा दिया। तरीके से बेदार रहें कि यहूद व नसारा की औलाद अमेरिका की पैदा करदा अल बगदादी जो उसका अमीर है, ये अमेरिका की जेल से आज़ाद हुआ और अमेरिका की जेल से आज़ाद होने के बाद दाइश तंजीम ISI ने बनाई। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, नौजवानों को जेल के सलाखों में डालने के लिए अमेरिका की साजिश है। इस शहर की फलाह बहबूद के सिलसिले में इस काम को शुरू किया है। दुनिया की तमाम मिली तंजीमें और तमाम बड़े उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि IS ये इंसानियत दुश्मन तंजीम है। जिस तरह से
दुनिया में, बैरूनी मुल्क में दाइश और आईसिस का जो मसला चल रहा है कि इतने लोगों को यहाँ मारा गया, इतने यहाँ बम फट गया, इतने लोगों को गोली मार दी गई, इस तरह से जो गैर कानूनी काम बाहर हो रहा है। और हमारी रियासत में, महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ बच्चे पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। इंतहा पसंद तंजीम IS के मुसलमान भी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। कलियर शरीफ के एक दीनी मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने IS का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर IS की सरगर्मियों को इस्लाम मुखालिफ करार दिया गया। मुल्क का मुसलमान IS और दहशत गर्दाना तंजीमों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। कुछ शैतानी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन ये ताकतें अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। बेंगलुरु में मरकजी वज़ीर मुमलिकत मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बात कही। NA ग्लोबल लॉ स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि IS की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ कायर, कुछ शैतानी ताकतें हैं जो इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन इस तरह की जो शैतानी शक्तियां हैं, उन शैतानी शक्तियों के देश के सौहार्द और देश की तरक्की और देश की एकता के ताने बाने को तोड़ने के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। ये मुल्क एकजुट है और इस मुल्क में ख़ास तौर से अगर आप देखें अल्पसंख्यक और मुसलमान ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हुआ है और ऐसी ताकतों को नेस्त नाबूद होना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं। इसलिए जो है वो इस देश में ऐसी ताकतें अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान चौधरी मुनव्वर सलीम ने मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मुनव्वर सलीम ने सदर जमहूरिया और सुषमा स्वराज से मुलाकात भी की है। टीवी नुमाइंदा एहतशामुल हसन से खास बातचीत में इन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश की गई तो वो वहां के एहसान जाफरी होंगे। वाज़ेह है कि मुनव्वर सलीम ओडिशा के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट चौधरी मुनव्वर सलीम का आरोप है कि मध्य प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है चौधरी मुनव्वर सलीम साहब। आप इस हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की है और आपने सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की है। क्या बातें की आपने और ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? मध्य प्रदेश का एक अंचल है मालवा। मालवा अपनी समरसता के लिए, कौमी यकजहती के लिए, अपने भोलेपन के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। मालवा के हर एक शहर को सांप्रदायिकता की आग में झुलसा दिया गया है। धार में एक बड़ा आर्टिस्ट रहता है जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम और मध्य प्रदेश का की शान और शौकत है। यूसुफ नाम है उनका। उन्होंने आज ही बयान दिया है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं, मैं हिंदुस्तान छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरा परिवार असुरक्षित है। ये एक सवाल है। लोग ये तो कह देते हैं कि देश छोड़ने की बात करते हैं लोग, लेकिन उस दर्द के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अगर धार के यूसुफ खत्री को ये कहना पड़े कि इतना बड़ा आर्टिस्ट कि मैं यहाँ असुरक्षित हूं, तो इस सवाल पर सोचने की जहमत क्यों नहीं कर रही है सरकार? खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के प्रिंसेस एसन हाई स्कूल में तलबा और उनके सरपरस्तों का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सेहत की निगहदाश्त के मौजू पर डॉक्टर सादिया जबीन ने कहा कि बच्चों की ग़िज़ाई आदतों पर नजर रखनी चाहिए और इन्हें फास्ट फूड के इस्तेमाल से बचाना चाहिए। इस दौरान मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल के नुकसानात पर भी रोशनी डाली गई। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर डॉक्टर नजमा अब्दुल्ला ने मेघालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में दीगर अहम शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि नजमा अब्दुल्ला के शिमाल मशरक़ी रियासतों के दौरे का आज आखिरी दिन था। नजमा अब्दुल्ला शिमाल मशरक़ी रियासतों के वज़रा और सेक्रेटरियों से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान अक़लियतों से जुड़ी वजारत अक़लियती उमूर की स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया जाएगा।
मरकजी वजीर अक़लियती उमूर डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि मदारिस में दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा को रोजगार के वसाइल मुहैया कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए पूरे मुल्क में पहल की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे नुमाइंदे ने नजमा हेपतुल्लाह से बातचीत की। आइए देखते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नाजिमा हेपतुल्लाह, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। मैडम, आसाम तथा उत्तर पूर्वांचल में आपका पहला दौरा है, खास करके आप स्किल डेवलपमेंट को लेके मदरसा में महिलाओं का जो एजुकेशन है उसको लेके खास तरह से स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए है। क्या था आपका सूची? मेरा अचीवमेंट ये है कि जितने भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लड़के हों कि लड़कियां हों, वो लोग दीनी तालीम हासिल करते हैं। उसके साथ साथ उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। तो हम लड़कों और लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद अगर वो चाहें तो हम उन्हें लोन देके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करते हैं कि वो अपना खुद काम कर सकें। और ऐसी स्किल हम सिखाते हैं कि जो एरिया स्पेसिफिक हो। नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम, हमारे कश्मीर के लिए उनका, पटना के लिए, बिहार के लिए उनका, अलग अलग प्रोग्राम हम बनाते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं। नई रोशनी का जो आपने जो कल नौगांव में, फिर मोरीगांव में भी आपने ये किया है, आपको क्या लगा कि अब जब आपने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की है, माइनॉरिटी समुदाय के लोगों से, क्या उनका कहना है कि उनका जो अपब्रिंगिंग किस तरह से हो रहा है, मतलब किस तरह से सुविधाएं मिल रही है? उनको सुविधाएं हमारी तरफ से तो मिल रही हैं। हमने पूरे देश में 70,000 महिलाएं ट्रेन करी हैं नई रोशनी में। उसमें से 4,000 महिलाएं आसाम की हैं। इस साल, पिछले साल की, इस साल भी हम 4,000 महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी तरफ से मिल रहा है, मगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं। मतलब उनका हालत कैसे है, आपने कैसे देखी? आपने गए थे? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, गांव में हालत बहुत खराब है। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो ये जो पूरा ये जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मतलब मुसलमान समुदाय का जो वोट है काफ़ी बड़ा एक फैक्टर होता है असम में, और इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आपका जो सरकार है, एनडीए सरकार, कितने कामयाब हुए? बहुत कामयाब हुई है। कल 3 दिन से, आज 3rd डे है, मैं रात को 12 बजे से पहले नहीं सोती हूँ। सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक लोग मिलने आते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। तो हम जीतेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।